So we are going to start with a new topic today, viruses. अगर आप लोगों को याद हो लास्ट टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया किंगडम फंजाई एंड अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटेकर देयर आर 5 किंगडम्स. अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर ओनली 5 किंगडम्स. तो 5 किंगडम्स में से हमने फर्स्ट किंगडम की थी एस मोनेरा. किंगडम मोनेरा. मोनेरा जिसमें बैक्टीरियाज थे. फिर हमने की प्रोटिस्टा जिसमें बैक्टीरियाज ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्केबैक्टीरियाज, गोल्डन एल्गी, तो ये सारे प्रोटिस्टेंट्स थे. फिर उसके बाद हमने किया है फंजाई. ये हम डिटेल में तीनों पढ़ चुके हैं. और जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन किंगडम प्लांटे और उसकी नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज बेस्ड ऑन किंगडम एनिमेलिया. तो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं प्लांटे और एनिमेलिया ये फुल ऑन चैप्टर्स हैं. we'll discuss them in details in both the chapters. तो ये जो इस चैप्टर में था मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई है which was given by R.H. Whitaker in his 5 kingdom system of classification. तीनों को आप डिटेल में आप पढ़ चुके हो अच्छे से. I'll repeat once again, don't worry. Maybe in the month of June or July I'll repeat everything. So there is no need to panic even if you have left one or the other topic, that there is no need to worry. Just make your notes. और इसमें इसकी ड्रॉबैक थी R.H. Whitaker की. R.H. Whitaker in the year 1969 he gave 5 kingdom system of classification and he could classify only 5 kingdoms. In his classification viruses were not given separate place. So this was the drawback. तो viruses के लिए अब हम इसी में viruses they were not included in his kingdom. This kingdom system classification system is still not accepted. और but सबसे अच्छा यही है, that is why we follow this. और इसके अलावा जो है वूज का है that is 6 kingdom system of classification. He has included this viruses also in his classification system, but अभी तक जो आप यूज करते हो that is 5 kingdom system of classification. So we'll study about viruses, viroids and lichens. Lichens, sometimes you call them as lichens. They are lichens. Lichens बड़े interesting organisms हैं. I told you it is important from need point of view. They are indicators of pollution. अगर कहीं पे भी pollution है, you will not find lichens. The lichens are not present in polluted areas. तो अगर कहीं कभी pollution check करना है, if the lichens are there, that means the quality of that area is good. अगर lichens नहीं है, then that area is polluted. So these are the indicators of pollution. So now I'm going to start with viruses. पहले आप सुनोगे, फिर उसके बाद आप note down करोगे. So I'm going to start with viruses. Viruses एक ऐसे organism है, as you know, COVID-19 is also a viral disease. So you must study about this viruses क्योंकि NEET में hot topics जो recent topics होते हैं उन्हीं के basis पे questions आते हैं. What are viruses? Viruses, they are very small. Viruses, they are very small. They are pathogenic organisms. Pathogenic organisms are those which causes diseases. They are very small pathogenic organisms. They are very small pathogenic organisms and they are considered to be on the borderline of living and non-living. क्यों इसका इलाज नहीं मिल पा रहा COVID-19 का, HIV का, which is a deadly disease. HIV we will study this in detail in next class. +2 में आप डिटेल में पढ़ोगे HIV के बारे में. कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है. Why is it so? अगर हम वायरस की बात कर रहे हैं तो वायरस को किल करने के लिए तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इंटरफेरॉन्स होते हैं. अब आप ध्यान से सुनोगे, जब भी कोई वायरस हमारी बॉडी में अटैक करता है हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इंटरफेरॉन्स. Interferons are the chemicals which are produced by our body in response to this viral infection. आपको जरा सा सर्दी और खांसी लगती है, जुकाम होता है, आप बोलते हो वायरल हो गया, तो वायरस इज प्रेजेंट इन एयर और आपकी बॉडी में ज्यादा स्प्रेड हो गया. इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दैट योर बॉडी हैज प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स और इस प्रोसेस में हमारी बॉडी हीट अप होती है
because you know bacteria and viruses get killed at high temperature. तो हमारी बॉडी अपने आप को गर्म करती है ताकि ये किल हो जाए. तो इसीलिए ये मैकेनिज्म है अपनी बॉडी को बचाने के लिए फ्रॉम दिस वायरल इन्फेक्शंस. अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वायरसेस हैं इनको हम मार नहीं पाए हैं. HIV का हम इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं. COVID-19 को हम रोक नहीं पा रहे हैं. What is the reason? They both are viruses, but we are not able to control them. The reason is they are on the border line of living and non-living. जब भी आपकी बॉडी में है, then they are living. And when they are outside your body, they are non-living. And interestingly, you'll be amazed to hear that you can store these viruses like your sugar crystals in jars for over 100 years. जैसे हम चीनी को करते हैं ना क्रिस्टल शुगर, उसको हम स्टोर करते हैं एक जार में फॉर ईयर्स, वैसे आप स्टोर कर सकते हो क्रिस्टलाइज फॉर्म में वायरसेस को. 100 साल के बाद भी अगर आप इसको किसी की बॉडी में इंसर्ट करते हो, दे विल बी फ्रेश, दे विल बी लिविंग. बॉडी के अंदर जिंदा है, बॉडी के बाहर मरे हुए हैं. तो मरे हुए को मार ही नहीं सकते. तो COVID-19 वायरसेस व्हेन इट इज प्रेजेंट इन एयर, इट इज नॉन लिविंग, इट इज डेड. बॉडी में आते ही जिंदा हो जाता है बिकॉज दे यूज द मशीनरी ऑफ या बायोकेमिकल प्रोसेस. This is called as biochemical process of living organism or host. Excuse me. Yes, Navreet. Ma'am, can you please explain the term how it lies on the borderline? हाँ, मैं अभी बताती हूँ. बेटे कह रहे हैं कि बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग के. कैसे लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे हैं? क्योंकि मैंने नवरीत आपको बताया कि आपकी बॉडी के अंदर है तो वायरस जिंदा है और बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग है. और मरे हुए को मार नहीं सकते, तो बाहर तो मारना पॉसिबल ही नहीं है. लेकिन अगर आपकी बॉडी में मारेंगे तो आपको भी मरना पड़ेगा. यू हैव टू किल दैट ऑर्गेनिज्म. यस कशिश. Ma'am, interferons and antibodies are the same? Yes, yes. जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस की जा रही हैं, and you won't believe the vaccination which is given to the people these days that includes viruses only. आपकी बॉडी में viruses डाल रहे हैं जिससे हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है एंटीबॉडीज इन द नेम ऑफ इंटरफेरॉन्स. और फिर डबल डोज, डबल बूस्टर दे रहे हैं. कह रहे हैं दूसरा डोज भी लगवाना पड़ेगा. डबल बूस्टर इज रिक्वायर्ड सो एज टू मेक इट स्ट्रॉन्ग. और जब थर्ड टाइम अगर आपकी गलती से वो COVID-19 एंटर करेगा तो आपके पास एंटीबॉडीज हैं टू किल दैट वायरसेस. अदरवाइज बॉडी हैज टू प्रिपेयर. और जब तक बनाती है बॉडी, बॉडी को टूटना पड़ता है और तब तक उसका इंफेक्शन हमारे लंग्स तक पहुंच जाता है. दिस इज द रीजन वायरसेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. HIV को आज तक नहीं मार पाए बिकॉज इट यूजेस द मशीनरी ऑफ होस्ट टू डबल इट्स नंबर. ये आपकी बॉडी में जाएगा, जरा सुनना, किसी की बॉडी में जा सकता है. COVID-19 ऐसा नहीं है कि मेल में जाएगा, फीमेल में, रिच में जाएगा, पुअर में, ऐसा कुछ नहीं है. इट कैन एंटर एनीवन. वायरस इज इन द एयर, यू नो, इट इज इन एयर. बोल रहे हैं एयरबॉर्न, एयर ड्रॉपलेट से आ रहा है. इज इट? तो इसी वजह से, क्योंकि एयरबॉर्न है, तो ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जब जाते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये लिविंग हो जाएंगे. और जैसे ही बॉडी के बाहर आते हैं, बिकॉज दे यूज योर DNA, यूज योर न्यूक्लियस टू इंक्रीज देयर नंबर, एंड दिस इज हाउ दे मल्टीप्लाई. ओके, सो दिस इज हाउ दे इंक्रीज देयर नंबर. तो ये रीजन है कि वायरसेस कैन नॉट बी किल्ड. अब वायरसेस के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो इसमें एक दो चीजें हैं जो आई विल डिस्कस. कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. There are certain viruses which can attack bacteria. क्या मजेदार चीज है, देखो, viruses which attacks bacteria. And that virus which attack bacteria is called as bacteriophage.
So what is a bacteriophage? Bacteriophage, Viruses Yeah, that virus attack which attack bacteria. bacteria. yes, viruses that attacks bacteria. The bacteriophage, when it attacks bacteria, the bacteria को kill करता है, that is why it is called as bacteriophage. And I told you they are on the borderline of living and non-living. When they are outside, they are dead. When they are inside the living organism, they are living. So इसीलिए इनको बोला जाता है borderline. Now I'm going to make the diagram for this bacteriophage and T2 bacteriophage. इसको commonly बोला जाता है T2 phage. आप इनके बारे में लिखोगे, I'll make you write down, but सिर्फ पहले सुन लो. T2 phage जो बैक्टीरिया है, इसका स्ट्रक्चर आता है ऐसे टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर है T2 बैक्टीरियोफेज का. T2 phage बोल दो, बैक्टीरियोफेज बोल दो. It has head, collar and tail fibers हैं ये. Tail fibers इसलिए हैं ताकि स्टिक कर सकें सेल के ऊपर. This head region has DNA or RNA, okay, and they have this sheath, very important covering. Sheath, it is made up of protein. प्रोटीन की शीट बनी हुई है और इसके पूरे पीस को बोलते हैं कैप्सिड. Capsid is made up of small pieces called as capsomeres. So it has a proteinaceous sheath in the head region and that is called as capsid. So this is the complete structure of the tail fibers. They are sticky. जैसे बैक्टीरिया, सपोज आई एम मेकिंग दिस बैक्टीरियल सेल, तो इसके ऊपर ये बैक्टीरियोफेज इस पे अटैक करेगा. एंड बैक्टीरियोफेज हैज हेड रीजन, टेल रीजन. तो टेल रीजन ऐसे इसको स्टिक कर जाता है. यस, Excuse me, ma'am. Capsid Yes. is only that particular region, or you're talking about the whole head? head, full head. Full Okay, head. Head is made up of pieces. ये small छोटे छोटे pieces होंगे इसके अंदर. And these pieces are called as capsomeres. और इसके बीच में ये पड़ा होगा आपका DNA और RNA. This is your genetic material, DNA. Maybe it has RNA or DNA. So this is the structure of an bacteriophage viruses. और भी एक वायरस दिया हुआ है आपकी NCERT में, which is TMV virus. आप जरा पहले सुन लो फिर आप लिखना. तो TMV is tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus is a havoc these days because इंडिया की या कह लो आप आधी से ज्यादा दुनिया की जो इकोनॉमी है, इट इज बेस्ड ऑन टबैको इंडस्ट्री. तो ये टबैको इंडस्ट्री जिसका जो तंबाकू का पौधा है विच इज नोन एज निकोटियाना, निकोशियाना बोलते हैं, टोबैकम एक पौधा है. और निकोशियाना के पत्तों को यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ निकोटिन. अगर आपको पता हो सिगरेट्स में इस पत्ते को ड्राई करते हैं, क्रश करते हैं और कागज के अंदर रोल करके पीछे बट लगाते हैं, स्पॉन्ज लगाते हैं. दिस इज व्हाट इज सिगरेट. एंड इफ दिस होल लीफ इज रोल डाउन, ऐसे पत्ते को रोल करते हैं और उस पर धागा लगा देते हैं, इट इज कॉल्ड एज बीड़ी. यू नो व्हाट इज बीड़ी? व्हाट इज सिगरेट? And the यस rolled leaf is bidi. yes And rolled leaf. cigarette is when it is dried and then put inside and with a sponge. Yes. So it is majorly, it is the leaf part which is sniffed. तो टोबैको में अगर इस पत्ते के ऊपर ये वायरस आ जाए, दिस इज अ टोबैको मोजाइक वायरस, तो ये क्या करता है, ये पत्ता पूरा का पूरा खा जाएगा और अंदर सिर्फ आपको ये जाली दिखेगी, मेश लाइक स्ट्रक्चर. ये पत्ता खा गया और इसमें ऐसे लगता है कि ये सिर्फ जाली आर पार. क्या किसी ने ऐसा देखा है कभी? लीफ पैचेस आ जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज मोजाइक होते हैं ऐसे शेप्स, तो ऐसे पैचेस. बाकी सारा पत्ता ठीक होगा, बस ये जो पार्ट था, ये पत्ता बिल्कुल ग्रीन है, इसमें बीच में जाली वाला पार्ट आ गया, मोजाइक रीजन. इस पत्ते का कोई काम नहीं होगा बिकॉज इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड. सो इट इज अ हैवॉक टू दिस टोबैको इंडस्ट्री. ये बहुत बड़ा एक न्यूसेंस है टोबैको मोजाइक वायरस. ओके, तो अब आई थिंक सभी को क्लियर हो गया. नाउ स्टार्ट विद द राइटिंग पार्ट. इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वायरसेस, एंड वायरसेस ने पूरी दुनिया को परेशान का आज तक इलाज नहीं मिल पाया बिकॉज यू हैव टू किल दैट ऑर्गेनिज्म. आदमी को मारोगे वायरस तो मर जाएगा. Excuse me, बट ma'am. यस, Are some viruses useful also?
Which one? There are some useful viruses also. Useful viruses? No, viruses are not useful. They are not useful. But they are parasites only. Okay, so they are parasites. They generally they attack the body of organism. जैसे viral होता है ना आपको सर्दी जुकाम, cold, influenza virus, flu virus. They're generally disease causing. Now please write down the heading viruses. Viruses के बारे में आप लिखोगे they are extremely small pathogenic. Pathogenic का मतलब मैंने बताया आपको disease causing. They are extremely small pathogenic organisms. They are extremely small pathogenic organism. Next point, they live and reproduce. They live and reproduce within living cells. अभी पता चल गया ना कि दूसरे की बॉडी में जाते हैं, उसकी मशीनरी को यूज करते हैं. आई हैव रिटन इट कि व्हाई दे आर ऑन बॉर्डर लाइन. गुरलीन ध्यान से सुनना बेटे. They are considered as on the borderline of living and non-living. When they are inside living, the organism, when they are inside the body of living organism, they are living. When they are outside, they are non-living. Why they are living inside the body of living organism? Because they use the machinery or biochemical process of host body. So that is why they are living when they are inside the body of living organism. Now please write down. Ma'am, can you repeat the second point? Second point is they can live and reproduce within living cells only. They can live and reproduce within living cells only. Okay, thank you, ma'am. Okay. Next point. They're called as bacteriophage. Bacteriophage, आपकी screen पे लिखा हुआ है spelling. They're called as bacteriophage when they attack bacteria. They are called as bacteriophage when they attack bacteria. They're called as bacteriophage when they attack bacteria. Next point. They lie on the borderline of living and non-living. Screen पे लिखा हुआ है. They lie on the borderline of living and non-living. They lie on the borderline of living and non-living. They lie on the borderline of living and non-living. They lie on the borderline of living and non-living. Next line लिखो. Outside the body of living organisms, they are dead. Outside the body of living organisms, they are dead. And within the body of living organism, within the body of living organisms, they undergo growth, multiplication. Within the body of living organism, they undergo growth, multiplication, and mutation.
within the body of living organism. They undergo growth, multiplication, and mutation. और लास्ट लाइन जरूर लिखना, they use host machinery. They use host machinery to increase their number. And which machinery? Host, H-O-S-T, host machinery to increase their number. How many of you are clear with this topic? Raise your hand. Viruses. Ma'am, can you please show the diagram also of the Yes, virus? I'll do that. Yes. It is given in the book also, but I'll share the picture in the group. Do you, bache, how many of you have NCERT with you right now? Ma'am, I have. I Okay. also have it. Okay, Kiran, Sukhman, just tell me the page number on which it is given, a diagram. I'm 26. 26. The diagram is this one. और इसमें डायग्राम में सिंपल सा डायग्राम था जो मैंने आप लोगों को बताया. आई गेस सबको ये समझ भी आ गया है, बहुत इजी टॉपिक है. डायग्राम में अगर आप देखो, इट हैज हेड, लुक ऑन योर डायग्राम, हेड, कॉलर, टेल. हेड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन शीट विच इज कैप्सिड. कैप्सिड छोटे छोटे पीसेस से बनी है विच इज नोन एज कैप्सुमियर्स. तो राइट डाउन द हेडिंग, T2 phage. T2 phage लिख लो, बैक्टीरियोफेज लिख लो, एक ही बात है. लिखो हेडिंग T2 phage या बैक्टीरियोफेज. स्ट्रक्चर ऑफ T2 phage या बैक्टीरियोफेज. इसमें 3 पार्ट्स होंगे. सॉरी, मेजरली हेड और टेल रीजन. तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. पहला लिखो हेड. स्ट्रक्चर ऑफ T2 phage. पहला पार्ट लिखो हेड. It is hexagonal prism. It is a hexagonal. I've made it as an hexagon. पता है सिक्स हेक्सागन क्या होते हैं? 6 sides. Yes, ma'am, with 6 sides. Yes. Figure. Yes. It is like hexagon prism, which is enclosed by Ma'am, please repeat. It is an hexagon prism. Yeah, it consists of hexagon prism enclosed by protein coat. Enclosed by protein coat. Called capsid. Ma'am, what is after enclosed by? Protein coat called capsid. It contains viral DNA. It contains viral DNA. It contains viral DNA. It contains viral DNA. सौम्या आप लिख रहे हो बेटे हेड रीजन के बारे में. हम ये डायग्राम आपने आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है बैक्टीरियोफेज. सौम्या प्लीज राइट डाउन हेडिंग बैक्टीरियोफेज. आप हेड रीजन में लिखोगे. It has hexagonal prism. It consists of, yeah, it has a hexagonal prism-like structure enclosed by protein coat called capsid.
बड़ा इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन है। इसकी कोट को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और वो कैप्सिड किसकी बनी हुई है? स्मॉल पीसेस ऑफ कैप्सोमियर्स। It contain viral DNA. It contains viral DNA. Sheath, SHEATH. Okay, it is protein sheath. Sheath को बोलते हैं covering. Okay. It contains viral DNA. Next heading लिखो tail. Head region में तो यही है, सिर्फ DNA और protein coat है. That's it. Protein coat and DNA. Tail में लिखो it is a cylindrical structure. Tail में cylindrical structure है. तो ये जो कॉलर पार्ट मैंने लिखा है इसको भी टेल रीजन बोला गया है. दिस इज कॉल्ड एज टेल रीजन. तो टेल रीजन इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर with a central hollow tube. It consists of cylindrical structure with central hollow tube. Hollow tube. Ma'am, can you repeat this point? Okay. टेल में आप लिख रहे हो it consists of cylindrical structure. ठीक है. टेल में आप लिख रहे थे it consists of cylindrical structure with central hollow tube. It has tail fibers. Which helps in their attachment. It has tail fibers which helps in their attachment on bacterial surface. Which helps in their attachment on bacterial surface. Clear everyone? बहुत छोटी सी बात बताई मैंने आपको कि बैक्टीरिया पे अटैच करने के लिए they have tail fibers. वायरसेस की हिस्ट्री लिखो, ब्रीफ हिस्ट्री. वायरसेस को नाम किसने दिया, सबसे पहले देखा किसने, क्यों इसको नाम वायरस दिया गया, इसका मतलब क्या है. तो राइट डाउन हेडिंग ब्रीफ हिस्ट्री. वायरस का मतलब होता है a poisonous fluid. जहर, जिसको हम समटाइम वी कॉल दैट एज वेनम. जैसे सांप का जहर होता है, बिल्कुल वैसे पॉइजनस फ्लूइड और वेनम व्हिच इज कॉल्ड एज वायरसेस. इट वाज फर्स्ट गिवन बाय Pasteur and Ivanovsky. Ivano, Ivanovsky. Ivanovsky. NCERT में इवानोव्स्की गिवन है. इवानोव्स्की वो ऑर्गेनिज्म है which causes TMD. मैंने आपको बताया अभी कि ये इकोनॉमी पे बहुत बड़ा झटका है. अगर टबैको इंडस्ट्री अगर आप लोगों को पता हो, आप हैरानी की बात सुनो कि इस पे सबसे ज्यादा GST है और ये कभी भी बैन नहीं होती. ये चीजें सबसे ज्यादा बैन होनी चाहिए. इवन इफ दे हैव गिवन दिस कॉशन कि इसको कंज्यूम करने से, इसको स्निफ करने से, इसको स्मोक करने से कैंसर हो सकता है, ओरल कैंसर, स्टिल पीपल कंज्यूम इट मोर. इसीलिए ओरल कैंसर Given on the packet, still they consume. यस. एंड लंग कैंसर या ओरल कैंसर मेन रीजन ही, मेजर रीजन इज स्मोकिंग. और स्मोकिंग में भी एक चीज हैरानी की सुनना
कि स्मोकिंग में एक तो जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनको तो इफेक्ट है ही है, जो आसपास है उनको ज्यादा होगा। एंड अगेन इट इज अ नीट क्वेश्चन, जो कर रहा है वो एक्टिव स्मोकर है, जो बिल्कुल साथ में खड़ा है वो पैसिव, किसको ज्यादा नुकसान होगा, एक्टिव को पैसिव को? Passive. Passive. पैसिव। कैन यू टेल मी व्हाई? Ma'am, because the person who is standing along with the person who is smoking, he or she may inhale the dirty air inside. हाँ, बट जो स्निफ कर रहा है, जो खुद कर रहा है, उसको ज्यादा नुकसान होना चाहिए। Cause बट हम ma'am, क्या, the smoke is inhaled by the person on the side. ऑन दी, सॉरी, Cause the smoke released is inhaled by the person standing by side. हाँ वो ठीक है, बट जो बच्चा कंज्यूम, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको ज्यादा इफेक्ट आना चाहिए, पैसिव को नहीं। जो साथ में खड़ा है उसको कम होना चाहिए। बट वी आर सेइंग पैसिव smokers, they are it is more dangerous as compared to active smokers. Why? Because in case of active smoking, जो जो स्निफ कर रहे हैं वो फिल्टर्स के थ्रू स्निफ करते हैं। यू नो व्हाट आर फिल्टर्स? वो जो स्पॉन्ज लगाते हैं, दैट एक्ट एज फिल्टर्स। और जो पैसिव है वो डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट गुड। और इनफैक्ट ये बोला जाता है कि जो अगर आप जो स्मोकिंग कर रहा है और जो चेन स्मोकर है, अब चेन स्मोकर किसने सुना है? रेज योर हैंड। व्हाट इज चेन स्मोकिंग? किसने सुना हुआ है? तन्वी, सुषमा। नाउ व्हाट इज चेन स्मोकिंग? यस। अब ऐसा नहीं है कि एक धागे से बांध लेते हैं या चेन से बांध लेते हैं, स्मोक करते रहते हैं। चेन स्मोकिंग मीन्स कि अगर एक स्मोक खत्म हुई, एक को बट को फेंका, दूसरा शुरू कर दिया, तो ऐसे कॉन्टिन्यूस पफ्स को बोलते हैं चेन स्मोकर्स। तो चेन स्मोकर्स का सबसे बुरी चीज ये होती है, देयर लंग्स आर ऑलवेज फिल्ड विद दिस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ऐसे लोगों के लंग्स को अगर आप देखोगे, वो लंग्स बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं, एज इफ दे आर बर्न। कोयला डिपॉजिट हो जाता है उसके ऊपर, कार्बन मोनोऑक्साइड और कोयला, जो कोल है, टार है, दैट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द लंग्स। और इनकी डेथ हो सकती है चोकिंग के साथ, क्योंकि lungs will remain filled with the air which is dirty, ठीक है, which is not required by our lungs. तो इवानोविस्की ने सबसे पहले जो टोबैको प्लांट के ऊपर इस वायरस को देखा और कहा कि एक जहरीला फ्लूइड है, एंड ही कॉल्ड इट एज वायरस व्हिच इज वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। फिर जिसने बताया है कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, वेजरनिक। पहले आप लिख लो, इवानोविस्की found these microorganisms on tobacco leaves. Beijerinck, Beijerinek, Beijerinck, extracted these viruses and tried to pass this infection to the healthy plants. Extracted and tried on healthy plants. Ma'am, can you repeat the point? Okay. सबसे पहले आपने लिखा इवानोविस्की recognized microorganisms on tobacco leaves. Recognize these microorganisms on tobacco leaves. Beijerinck extracted and tried to infect healthy plants and called them plants and called them as Contagium vivium fluidium. इसने बताया कि एक फ्लूइड है जो कंटेजियस है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, Contagium vivium fluidium. बेजरनिक ने क्या किया, जो पत्ते पे इन्फेक्शन हो रहा था, जाली बन रही थी, समझ रहे हो, मैंने आपको बताया अभी मोज़ाइक बन रहा था, उसने उस इन्फेक्शन को लिया, उस पत्ते का पार्ट लिया एंड ट्राइड टू पुट इट ऑन द हेल्दी लीफ, एंड ही फाउंड दैट
इट इज कंटेजियस। कंटेजियस वो होता है जो एकदम फैलता है, वो पत्ता भी बिल्कुल खराब हो गया। एंड ही कॉल्ड दिस एज लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, जिंदा था तभी वो दूसरे पे फैला। तो पहला साइंटिस्ट आपने लिखा इवानोविस्की, दूसरा बेजनिक, थर्ड साइंटिस्ट का नाम लिखो स्टैनले, जिसने वो बात बताई थी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि यू कैन क्रिस्टलाइज देम। आप इसको क्रिस्टलाइज करके बॉटल्स में रख सकते हो, दे कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। अब सच में नहीं रख सकते, ये साइंटिस्ट कर सकते हैं, दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड and can be stored. कर लिया सभी ने, लिख लिया? Yes, ma'am. So these are the reason, this is a kind of a brief history कि poisonous fluid जो है that was extracted by Ivanovsky from TMV, tobacco plant. First isolated was TMV. TMV मैंने you can see it from your NCERT 26 page where it is given. You can see the diagram also. तो बिल्कुल सिंपल है, विदाउट प्रोटीन कोड, कोड जो है दिखेगा ही नहीं उसमें क्योंकि वो सारा पार्ट ही बीडेड फॉर्म में है और उसके बीच में जो स्ट्रक्चर मिलेगा आरएनए या डीएनए। बेजरनेक ने उसको एक्सट्रैक्ट किया, हेल्दी प्लांट्स पे इन्फेक्ट किया और बोला ये फ्लूइड है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। स्टैनले ने उसको क्रिस्टलाइज करके रख लिया बाहर। अब इसकी आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखो। अभी मुझसे नवरीत ने क्वेश्चन पूछा था कि आर दे यूजफुल viruses? They are useful because we have to study them. They are economically important because ये disease cause कर रहे हैं, तो इनको study कर रहे हैं। कह रहे हैं ना अभी देखो COVID-19 का इलाज नहीं मिल रहा, तो many scientists they are working on this virus. That means it is important. Yes. Yes. हाँ, Yes, ma'am. अब हमारी कंट्री ने अगर वैक्सीनेशन बनाई है, अगर हमारी कंट्री पायनियर है वैक्सीनेशन में, तो it is increasing the economy, so it is economically important. Okay. So economic importance, yes, it can be by organism which may be disease causing also, because उसको study करना है, उसका इलाज निकालना है, तो इसमें इकोनॉमी बहुत हिलती है। आप देख सकते हो इकोनॉमी कितनी मेजरली चेंज हुई है ड्यूरिंग पास्ट 1 year। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में लिखो, इट कैन कॉज डिजीजेस लाइक, अभी मैंने आपको बताया था कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड को बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, INFLUENZA, इन्फ्लुएंजा। स्मॉलपॉक्स, मम्स। मम्स के ऊपर आता है नीट पे क्वेश्चन, मम्स क्या होते हैं? किसी को पता है मम्स क्या होते हैं? अच्छा, ये मम्स जो हैं, ओके कशिश, Yes, यस, ma'am. I know. okay, okay, so many students are aware of this disease, mumps is, okay, okay, kashish, सुखमन, okay। तो मम्प्स जो होते हैं हमारे जो कान के पास वाला एरिया, चीक एरिया जिसको बोलते हो आप, चीक्स जो हैं वो थोड़े स्वोलन हो जाते हैं, दे बिकम हार्ड, स्वोलन, इट्स हाईली पेनफुल, इतना दर्द होता है कि फीवर चढ़ जाता है। और कान जो सूजता है वो बिकॉज ऑफ स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड्स। तो इसे याद रखना, ये मम्प्स के बारे में हम Ma'am, पढ़ रहे हैं can you just आदित्य। repeat once? हाँ, yes, I बच्चे, I have got just, yes, disconnected. yes, got it बेटे। तो we are doing this mumps only। mumps disease जो है, मैंने आपको इसमें बताया कि swollen cheeks हो जाते हैं, गाल जो सूज जाता है, कान सूज जाता है, इतना दर्द होता है कि it may cause your body to heat up, इतना बुखार, सीवियर बुखार आ जाता है, and it is highly painful। और ये जो रीजन है, ये पार्ट जो है, इट इज हाईली इन्फेक्शियस ऑल्सो। तो मम्प्स जो है इसमें हमारे पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर चीक समझते हो, चीक्स में आपके गालों में है, तो पैरोटिड ग्लैंड्स जो हैं वो स्वोलन अप हो जाते हैं। दिस इज द सिम्टम, स्वोलन पैरोटिड ग्लैंड्स मम्प्स का, एंड इट इज अ वायरल डिजीज, वायरस की वजह से होती है। तो मम्प्स, ये अगेन इट्स अ पेनफुल डिजीज।
स्मॉल पॉक्स, पॉक्स वायरस होते हैं जिसमें आप बोलते हो माता, वो जो दाने आ जाते हैं ना पूरी बॉडी पे, शरीर पे दाने हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्मॉल पॉक्स। इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, आप देखते हो ड्रॉपलेट्स आपके आसपास, अगर 1 मीटर तक कोई बैठा हुआ है तो उसके अगर पास ड्रॉपलेट्स चले गए तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। टच से भी फैलता है, ये ऐसे वायरसेस हैं, आपने किसी से शेक हैंड किया है, किसी को हक किया है, तो ये इन्फेक्शन पास हो सकता है। इवन इफ यू आर नॉट सिटिंग नियर बाय, यू आर जस्ट स्टैंडिंग, एक रूम से दूसरे रूम में भी चले जाते हैं ड्रॉपलेट्स। इफ देर इज अ वेंटिलेटर, up to 2 meters they can spread. So these are the viruses and they may occur through droplet infection. तभी ये जो वायरस है ना, इसमें हम मास्क क्यों लगा रहे हैं? Because it can spread up to large distance. और सबसे डेडली वायरस कौन सा है? एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं मिला है, इसको सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है। देयर इज नो क्योर एट ऑल। So these are the diseases in animals, whereas in case of plants, प्लांट्स के केस में आता है लीफ येलो, पत्ता जो है लगा हुआ येलो हो जाता है। when it is attached to the plant it becomes yellow. लीफ जो है रोल अप हो जाते हैं, रोलिंग ऑफ लीफ, कर्लिंग ऑफ लीफ, लीफ रोल, लीफ कर्ल, स्टंटेड ग्रोथ। वायरसेस में सिर्फ इतना पार्ट आप लिखो। Now, what happens in AIDS? Like when we get a disease AIDS, what happens to the body? एड्स, हाँ मुझे एड्स का ना, दिस टॉपिक इज गिवन इन योर +2 एनसीईआरटी, सो आई विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट क्लास इन डिटेल, कैसे फैलता है, क्या रीजन होता है। डेथ never occurs because of AIDS, it is because of other symptoms. AIDS is actually a syndrome. Syndrome is what makes your body weak. आपकी बॉडी को इतना इम्यूनिटी लो कर देता है कि कोई भी छोटा सा बुखार या छोटा सा छींक भी आती है या कोई खांसी भी आती है, it may cause death because your immunity is zero. So it is kind of a slow death and death is sure. So this is the reason it is considered as a deadly disease and it can be transferred very easily, पता है आपको, through sexual contact, through use syringes. So we'll discuss this. बड़ी Ma'am, interesting is it बातें हैं. genetically also? It may pass from mother, pregnant woman to the child, but it is not always. तो इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं ये एक तो एड्स का टेस्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूसरा एक और चीज आती है जो ट्रांसप्लेसेंटल है, जो मदर से बच्चे में आ सकती है, दैट इज जर्मन मीजल्स। तो ये दो चीजों का टेस्ट करना जरूरी होता है बिफोर पार्चुरेशन, बच्चे को निकालने से पहले। ओके, क्लियर एवरीवन? सो आई गेस Yes, Yes, ma'am. viruses part is clear. Now I'm coming to very interesting part, viroids. Viroids जो हैं they are smaller than viruses. अब वायरस का स्ट्रक्चर तो आपने देखा, ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर था, इसमें ऐसे स्टिकी एंड से, और इसमें बीच में डीएनए था। तो अब अगर हम इसका सारा प्रोटीन कोड खत्म कर दें तो ये हैं वायरॉइड्स। The viroids, they are smaller than viruses because they do not have, क्या absent कर दिया मैंने, protein code. Okay, so viroids they are. Ma'am, ma'am, the second word after protein, can you spell it? Capsid, protein sheath. ये Yes, ma'am. sheath. Okay, ma'am. Thank you. Okay, तो अब ये साइंटिस्ट है डाइनर। डाइनर जो है इसने डिस्कवर किया these are new infectious agents which are smaller than viruses. Why they are smaller than viruses? Because they do not have protein code. They have just free RNA. This is RNA. They have just genetic material within the sheath. Within this membrane, they have just free RNA. It may be circular, it may be spiral. ये बनाया मैंने जो spiral RNA बनाया, and they cause number of diseases. और इसमें सबसे important disease आती है potato tuber disease. अगर आपको पता हो, पोटैटोज जो हैं
बहुत सारे लोगों की डेलिकेसीज हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है खाना पोटैटो। एंड पोटैटो एक ऐसी चीज है, कुछ ना हो तो पोटैटोज आलू के साथ कुछ भी मिक्स हो जाता है, कुछ भी सब्जी बना लो। मैक्सिमम चीजें मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते हैं, तो अगेन इट इज अ वेरी पावरफुल इंडस्ट्री इन इंडिया। पोटैटोज को खत्म कर रहा है, बीच में से खोखला कर देता है, बीच में से सारा खराब कर देता है। बाहर से छिलका अच्छा लगेगा देखने में, अंदर से बिल्कुल खराब। The potato tuber disease is caused by this viroids, which cannot be seen by naked, and they are highly infectious and they are very small. They are smaller than viruses. Interesting बात सुनना, बैक्टीरिया से छोटे हैं, बैक्टीरिया बड़ा है, बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोपी मानते हैं, उनसे भी छोटे हैं वायरसेस, वायरसेस से भी छोटे क्या आ गए, आवाज आपने पढ़े, वायरस। सो जस्ट इमेजिन हाउ स्मॉल दे आर। तो लिखो इसके बारे में, वायरॉइड्स के बारे में। They are small infectious agents They are small infectious agents which can cause number of plant diseases. They are small can you infectious. Yes, they are small infectious agents which can cause number of plant diseases. Small infectious agents which can cause number of plant diseases. It consists of free RNA It consists of free RNA without any protein coat. It consists of free RNA without any protein coat. तो डिजीज का कॉज नाम लिख लो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। लाइकेंस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है, बट आज हम आई एक्सप्लेन, देन आई मेक यू राइट डाउन इन द नेक्स्ट क्लास ओनली, बट आप पहले सुनोगे। कैन आई मूव टू नेक्स्ट पेज? आई गेस ये सभी को क्लियर है वायरॉइड्स के बारे में। Yes, ma'am. Ma'am, ओके, यस। there is a line written in the NCERT that the RNA of the viroid was of low molecular weight. So what does मॉलिक्यूलर, इट इज वेरी लाइट, वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। मतलब इसमें अगर सिर्फ इसने मेम्ब्रेन को इसी ने इनक्लोज करना है तो इट शुड बी वेरी लाइट। मॉलिक्यूलर वेट इज वेरी लाइट, दे आर वेरी लाइटर इन वेट, इसलिए इसको बोल दिया कि दे आर वेरी स्मॉलर देन वायरसेस, सो दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। Okay, ma'am. Thank you. Now, I think we have done about mycoplasma, है ना? We have already done. Yes, mycoplasma हम कर चुके हैं। Yes, ma'am. हाँ, आपको मैंने शायद प्रोटेस्टेंट्स में ही करवाया था या मॉनरेंस के बाद, आई डोंट रिमेम्बर मैंने आपको किसके बाद टॉपिक में करवाया है। आई थिंक इट्स विद मॉनरेंस। तो माइकोप्लाज्मा में एक डिजीज है, एक तो आप लोगों को लिखवाई थी फुट एंड माउथ डिजीज इन कैटल। गाय भैंसे जो हैं, कैटल्स हैं, उनके मुंह में और पैरों में फुट एंड माउथ डिजीज होती है, जिसमें ना वो पैर टिका पाते हैं ना वो मुंह रोक पाते हैं, और पैर नहीं Yes, टिका ma'am. पा रहे तो दे विल नॉट बी एबल टू स्टैंड। तो दिस इज द deadliest disease, and this microorganism mycoplasma is the smallest living cell और सबसे खतरनाक बीमारी कॉज कर रहे हैं। and you'll be amazed to hear it also causes witch's broom disease in plants. Witch's broom, Ma'am, we did this after Monera. Monera, हाँ।
तो बच्चे उसमें एक ही एग्जांपल लिख लो, विचेस ब्रूम इन प्लांट्स। विचेस ब्रूम डिजीज क्या होती है कि आपने कोई क्रॉप लगाया, आपने वीट लगाया, तो उसके वीट में दाने तो आए नहीं, उसके वीट का सीड तो आया नहीं, लेकिन वो ऐसे ब्रूम बन गया, झाड़ू बन गया। विचेस समझ रहे हो, जैसे वो जो Yes, विचेस, हाँ विचेस का जो ब्रूम झाड़ू पे जो विचेस इधर से उधर घूमती हैं, वो ब्रूम समझ लो, वैसे ही झाड़ू बिल्कुल उस शेप में आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज विचेस ब्रूम। तो ये सारे के सारे पौधों को ऐसा कॉज कर देते हैं, और झाड़ में कुछ भी नहीं होता। तो इट इज कॉल्ड अगेन अ वेरी बैड डिजीज फॉर agriculture industry. It is caused by mycoplasma. Now I am going to start with a very important topic, that is lichens. Sometimes you say it as lichens, but it is lichens. Lichens होते क्या हैं पहले ये समझ लो। मैंने अभी बताया they are the indicators of pollution. pollution. जहाँ pollution होगा वहाँ ये नहीं मिलेंगे आपको, they are the indicators of pollution. तो lichens जो है, it is an symbiotic association between algae and fungi. एल्गी पार्ट को हम बोलेंगे फाइकोबायंट, एंड फंजाई पार्ट को हम बोलते हैं माइकोबायंट। तो दोनों के बीच में एसोसिएशन को हम नाम देते हैं lichens. It is in symbiotic association between algae and fungi. Algae part is phycobiont, fungi part is mycobiont. माइको वर्ड हम यूज करेंगे हम फंगस के लिए, एल्गी के लिए हम यूज करेंगे फाइको वर्ड, PHYCO. Study of algae is phycology. Study of fungi is mycology. I have done a PhD in algae, so I am a phycologist. I am a scientist in algae, on algae. I have did my studies on algae, so I am a phycologist. तो phycobiont अब याद रखना, phycobiont और mycobiont की एसोसिएशन को नाम दिया गया। और अब अगर आपको पता है, if the algae is green in color, so it is giving food. Algal partner is green algae, so it is fixing food by the process of photosynthesis, whereas the fungus, which is non-green, it is providing, yes, Shelter. Providing shelter. shelter and moisture. It is giving shelter and moisture to algae from the atmosphere. अब अगर मैंने आपको ये बताया है, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, एक और इनके बारे में आज आपने याद करना है, दे आर द pioneers on barren land. barren land, barren मतलब होता है बंजर जमीन। तो बंजर जमीन पे सबसे पहला ऑर्गेनिज्म अगर कोई आएगा, दैट विल बी लाइसेंस on bare rock, barren land, even on volcanic lava. अगर volcanic lava cool down होता है, then these are the organisms which will appear first. So they are very important, lichens, because again they help in the process of, this is what we call as life cycle. They help in creating the barren land or and vacant area, and on the basis of their shapes, they are of different types. तो इसको नाम देते हैं morphology. Morphology मतलब अगर आप इनको देखोगे तो they are of different types on the basis of their shapes. If they are leaf-like, it is called as folios. Folios word is leaf. If they are leaf-like in shape, they are called as folios. दूसरा, if they are present on the surface of earth, it is called as crustose on the substratum. And if they are fruit-like, or they are attached to the, they are like fruit, appeared like as if fruit is there, then it is called as fruticose. So on the basis of their shapes or their presence, they are of different types. This is the classification on the basis. Second one? What is the second one? Crustose. Crustose मतलब crust मतलब earth पे, and they are attached to the substratum. कई बार आपने देखा होगा बारिशों के बाद अगर आप पार्क में जाते हो या आप किसी सरफेस पे जहाँ पे सीमेंटेड नहीं है, वहां पे आप
वहां पे यस, वहां पे आपने देखा होगा, वहां पे आपने ये देखा होगा कि सॉइल पे ग्रे ग्रे अपीयरेंस आनी शुरू हो जाती है सबस्ट्रेटम पे। ऐसे लगता है कि ग्रे कलर की जो सबस्ट्रेटा वो उखड़ के बाहर आ रही है। किसी ने ऑब्जर्व किया है? बारिशों के बाद जब ड्राइनेस होती है, बारिश के बाद तो एल्गी गीली गीली होती है, तिलकन होती है। अगर उस जगह को आप बाद में जाके देखोगे ड्राई होने के बाद, तो ऐसे लगता है कि जमीन में सीमेंट जैसा कुछ ऐसे उखड़ के आ रहा है। किसी ने ऑब्जर्व किया है ऐसा? Yes, ma'am. ओके किरण, तो ऐसे लगता है वो, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्टोस, दैट इज लाइकन। तो दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो क्रस्टोज में अगर आप देखो तो इसमें इसका नाम ही ग्राफिस शेप, ग्राफिक शेप आती है तो ग्राफिस नाम दे दिया। फोलियोज में इफ दे आर ऑफ लीफ लाइक, तो फोलियोज में एग्जांपल आ गया पार्मीलिया। फिर उसके बाद फ्रूटिकोज में इसमें एग्जांपल लिखोगे एवर्निया। तो दीज आर द एग्जांपल्स। और अगर आपको याद हो, आपने 10th में पढ़ा था, इसके बारे में लिखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर ये आप लिखना चाहते हो थोड़ा बहुत लिख लो, बिकॉज इसके बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लाइकन अगर आपको याद हो तो लाइकन ने आपके पीएच इंडिकेटर बनाया था, which is known as, yes anyone? Lichens. No, light litmus. Litmus Yes, paper. ma'am. Litmus paper. हाँ, लिटमस पेपर। अगर आपको याद हो, लिटमस जो है पर्पल कलर डाई विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइक lichen. तो पर्पल कलर डाई विच इज एन यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ lichen. It is used as a source of medicine and in perfumes also, and as a source of fragrance. मिट्टी की खुशबू आती है, बहुत अच्छी लगती है। अभी देखो बारिश पड़ रही है, बाहर जाओगे आप क्लास के बाद, किसको अच्छी लगती है वो मिट्टी की खुशबू Yes. आफ्टर रेन शावर? तो वो सेम अगर ऐसे आपके परफ्यूम्स में हो, आपके डिओड्रेंट्स में हो, and they are used as a source of food by animals like reindeer moss. Animals like जो reindeer हैं, sorry not reindeer moss, it is reindeer, reindeers समझ रहे हो आप, जो सेंटा क्लॉज के आगे जो उसके कार्ट को Yes, जो ma'am. लेके जो जाते हैं, हाँ लेके आते Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. तो वो रेंडियर्स, तो वो भी इन चीजों को एज अ फूड खाते हैं। तो इन टुंड्रा रीजन they are used as a source of food by animals like reindeers. So this is all about lichens today. I'll discuss in brief in next class in details only. Sorry, lichens के बारे में आप लिखना चाहते हो लिख लो. It is a symbiotic association of fungi. ब्रैकेट में लिख लेना mycobiont. It is the symbiotic association of fungi, mycobiont and algae, phycobiont. It is a symbiotic association of fungi, mycobiont and algae, phycobiont. और जो फंगल पार्ट है, अब आप पढ़ चुके हो, तो जनरली they belong to either Ascomycetes or Basidiomycetes. Again a neat question. Fungal partner is usually Ascomycete or Basidiomycetes. The fungal partner is either, yeah, usually Ascomycete or Basidiomycete. Yes, ma'am. Done? Okay. Yes, ma'am. Okay, और algal partner लिखो.
Algal partner is green algae or blue green algae. Algal partner is blue green algae or green algae. Ma'am, if the algae is green, so we can say that it can prepare its own food because it has presence of chlorophyll. Yes, yes, it is green, so it can make its own. The algal partner is either green algae or blue green algae. Next line में लिखो algae prepare food by photosynthesis. Algae prepares food by photosynthesis. And fungi provide shelter and moisture. And fungi provide shelter and moisture from the atmosphere.